Now let's see question number two. That is, sorted evidence strength score is given from 1 to 100, extracted from the complaint text. We have given some sorted values. Now we have to find what is mean, what is median, what are modes and methods of modularity. Uh, Estimate what is mid-range, estimate Q1 and Q3, give 5 number summary, draw box plots of square. And in context, how is quantile QQ plot different from quantile plot? Follow a target distribution assumed by DSS. So we have to solve all these parts for this given data. So here, question number two, sorted evidence strength. We have found mean with the formula given earlier, and mean is 30, median is 25. Mean is total sum of all the values upon total number of values. Median is the middle of what our data is. Like in this between data, this 25 is our median value, and then the rest is over here. Modes. So modes are the high frequency count values, that is 25 and 35. Like here you can see 25 comes like 4 times and 35 also comes 4 times. So we have found our two modes. Then since there are two distinct modes, यानी कि हमारे पास जो दो अलग-अलग modes हैं, that is 25 and 35, so we have a Bayer model. Bayer represents number 2. So Bayer model. Okay, so this distribution is what? A Bayer model distribution. Then we come to mid-range. Mid-range goes from minimum plus maximum. So in this data, our minimum value is 13 and maximum value is 70. So what the mid-range will comply for? Mid-range is 41.5. And it is strongly influenced by outliers, not robust. तो ये जो डेटा है, ये पर्टिकुलर डेटा आउटलायर्स से बहुत ज्यादा ही सिग्निफिकेंट क्या बोल सकते हैं, रॉबस्ट है. ठीक है, यानी कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. नाउ व्हाट इज एन आउटलायर? सो आउटलायर्स आर द डेटा पॉइंट्स व्हिच आर नॉट सेम टू द डेटा पॉइंट्स. यानी कि हमारे कुछ इतने गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में इसके अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स आते हैं, एंड देयर आर सम आउटर एग्जिस्टिंग पॉइंट्स लाइक इधर इधर इस डेटा के आसपास. Now, this distribution of outer points affects the distribution under our inner graph or inner plots. तो ये जो outer points में influence हो रहे हैं, ये कहलाते हैं outliers. ठीक है. Now coming to the Q1 and Q2. So what is a Q1 and what is Q2? Q1 and Q2 stands for quantiles. और ये क्वांटाइल्स बेसिकली इस गिवन डेटा में जब हमने मीडियन निकाला तो मीडियन हमारा 25 आया. अब इस गिवन डेटा में ये मीडियन निकालने के बाद दो अलग अलग हाफ्स में ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया. दैट इज द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ. तो फर्स्ट हाफ वाली वैल्यू का भी जो मिडिल पॉइंट आएगा वो कहलाता है हमारा Q1, और जो सेकेंड डेटा का पार्ट आएगा वो कहलाता है हमारा Q2. तो इस तरीके से हमने Q1 एंड Q2 निकाले. सो दिस इज द मेथड कि फर्स्ट हाफ जो होगा ये इतना आएगा और इसका फर्स्ट मीडियन 20 और दूसरे का 35. तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ Q1 एंड Q2. नाउ वी कम टू 5 नंबर समरी. तो 5 नंबर समरी के अंदर हम 5 गिवन डेटा के ऊपर 5 जो मेन पर्टिकुलर वैल्यूज हैं उन्हें जस्टिफाई करते हैं. दैट इज मिनिमम, then Q1 first quantile, that is 25% of the data, then median, then 75% of the data, and then maximum. अब इन सारी वैल्यूज के रेफरेंस में हम एक बॉक्स प्लॉट ऑफ एविडेंस स्ट्रेंथ भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि y एक्सिस पे हमारी सारी वैल्यूज रिप्रेजेंटेशन होगी. सबसे नीचे यानी कि मिनिमम वैल्यू 13 से हम यहाँ पे शुरू करेंगे, फिर आते हैं हम 20.5 पे, तो ये हमारा 20.5 रिप्रेजेंटेशन होगा. अब इस वैल्यू से इस वैल्यू तक लाइक इस वैल्यू से ये 20 यानी कि 25% ऑफ वैल्यू से 75% ऑफ वैल्यू तक हमारा बॉक्स प्लॉट का कंस्ट्रक्शन होगा, और इसके बीच में हमारा मीडियन ड्रॉ होता है, एंड देन दिस पर्टिकुलर गोज ओवर हियर.
तो आफ्टर द मेकिंग ऑफ अ बॉक्स प्लॉट वी कैन जस्टिफाई कि हमारा जो मेन कंसंट्रेशन ऑफ डेटा जो है वो मीडियन के आसपास ही है, आउटर में यहाँ पे सबसे कम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है. Okay, now we see the long upper whisker and this is what it represents. A difference between quantile plot and QQ plot. The quantile plot is a quantile versus probability position, whereas QQ plot is quantile of data versus target distribution. Now, distribution shape of your sample and check whether data follows an assumed model. ठीक है. फिर this spread skewness and tails, तो quantile plot के अंदर skewness and tails होता है. Whereas ये पर्टिकुलर वैल्यू ये देखता है कि व्हाट डज माय डेटा लुक लाइक, यानी कि जब क्वांटाइल प्लॉट प्लॉट होता है तो ये देखा जाता है कि आपका पर्टिकुलर डेटा किस तरीके से दिख रहा है. बट यहाँ पे क्या देखा जाता है कि हाउ क्लोज इज योर डेटा टू स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन. डीएसएस में ये दोनों क्या डिफरेंस लेके आते हैं, तो क्वांटाइल प्लॉट शोज वेदर एविडेंस स्कोर राइज ग्रेजुअली जंप और क्लस्टर, यानी कि ये पर्टिकुलरली देखता है कि आपके जो गिवन डेटा में है वो क्या चीज शो हो रहा है या आपका डेटा किस तरीके से दिख रहा है. वहीं पे क्यूक्यू प्लॉट में इट चेक्स द एविडेंस स्कोर फॉलोज नॉर्मल लाइक और स्क्यूड पैटर्न, यानी कि क्या पैटर्न आपके स्कोर में दिख रहा है, दैट इज बीइंग शोड. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 from part A.